unit number 6, okay, which is the triple integral and its application. Triple integral and applications and its applications. So if you compare this triple integral with double integral, okay, this is more simple. Okay, triple integral थोड़ा आपको easy जाएगा. अगर आप मतलब डायग्राम भी देखते हो तो डबल में you are in 2 dimension, okay, and in triple integral now we are in 3 dimension. तो आपकी डायमेंशन इंक्रीज हो रही है, बट फिर भी ट्रिपल के क्वेश्चंस आपको इजी जाएंगे इफ यू कंपेयर विद डबल इंटीग्रल. ओके, एंड एट द एंड हाउ वी सॉल्व ट्रिपल इंटीग्रल, आप कैसे सॉल्व करने वाले हो ट्रिपल इंटीग्रल. ओके, विल कन्वर्ट द ट्रिपल इंटीग्रल आइदर इन सिंगल इंटीग्रल, तो थ्री सिंगल इंटीग्रल्स में आप उसको कन्वर्ट करने वाले हो, या आप डायरेक्टली उसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट इज द लॉजिक. ओके, सो what is the general representation of any triple integral? How it is represented? 3 integral f of x y z dx dy dz, correct? So one of the integral gives you limits of z, one of the integral gives you limits of y, and one of the integral gives you limits of x. So it is given, or we know that there are basically 2 methods. In one method or in one type we have given the limits of triple integral, and in next type we have to calculate those limits using a region. Okay, so this is one way to represent a given triple integral, and another way is what, instead of limits we have given a region. But here now we are in 3 dimension, so that region is what, volume. Okay, it is not a volume. So it is not the 2 dimension thing, it is a 3 dimension thing. Okay, and same function of f of x y z dx dy dz. So this is the triple integral, you can say, with limits, and this you can say a triple integral without limits. तो ये दोनों केसेस में हमें ये टॉपिक देखना है. ठीक है. So now let us first start with the triple integral. Let us first start with the triple integral with limits. Okay, triple integral with limits. Okay, so can anyone tell me what you can feel? What is the logic, or what is the logic to identify the limits of this triple integral in a similar approach to double integral? क्या आपको फील हो रहा है कि ट्रिपल इंटीग्रल में क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? डबल इंटीग्रल में क्या था? कैन एनीवन टेल मी दैट रिजल्ट अगेन? हाउ यू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल इफ लिमिट्स आर गिवन? कैन एनीवन टेल मी दैट? कैन एनीवन टेल मी हाउ यू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल? Yes, how you identify order of double integral? आपण लिमिट्स बघायचो, इनर लिमिट्स चेक करायचो आपण. हां बोलो ना, you can continue. करेक्ट जा रहा है. So if this is my double integral, if inner limits are in function of x, then we integrate it with respect to y. x है ना, function of x, then your order is dy dx. ठीक है. In a similar way, if your inner limits are function of y, then your order is dx dy. ठीक है. So in a similar way, okay, in a similar way, can you tell me what are the conditions for triple integral? And for that, let me just write first triple integral, and you tell me what are those conditions. ये तो समझ में आ गया. डबल का रिजल्ट क्या था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. If the limits of inner integral are in x, your order is dy dx. If the limits of inner integral are in y, your order is dx dy. Okay. In a similar way, can you tell me the conditions for triple integral? आपको क्या फील हो रहा है? बोलो. This is general representation. What statement you can define for this triple integral? So there are more than one statement. What is the condition for inner integral? मतलब क्या क्या possibility आ सकती है inner integral के लिए, पहले ये बोलो. Now in this case, function of x, function of y, function of z.
this is your inner integral, this is middle, and this is outer. पहले ये बोलो what are the conditions on outer integral? हाँ? Constant. Always constant. हाँ, ये कभी change नहीं होता. So these are always constant. Okay. Now what you feel? What are the मतलब what are the cases? What are the cases for inner integral? Double में दो ही cases थे. It is either a function of x or it is either a function of y. In a similar way, what are the conditions for this inner integral? Total cases. Huh? Function of x, function of y, and function of z. Okay, but can it be a single variable function? Can it be a single variable function? ये जो भी आपने बोला that comes under middle integral. That comes for middle integral. एक ही इंट देता हूं इस केस में that must be a function of two variable. That must be a function of two variable. x y y z. आपने लॉजिक क्या था जब x का फंक्शन आता है जब इनर इंटीग्रल जब x का फंक्शन आता है if the limits of inner integral are function of x so other than x now there is only one variable क्या था वो y इसलिए आप उसको y से इंटीग्रेट कर रहे हैं ये था उसका लॉजिक if the inner integral are function of x then other than x there is only one variable which is y therefore we have to integrate first with respect to y am I correct yes sir in a similar way can you tell me a statement for this now सर मग इनर इंटिग्रल जर टू व्हेरिएबलचं फंक्शन असेल तर मग थर्ड व्हेरिएबल त्याचा हे असेल हां ओके सो इफ इनर इंटिग्रल इज फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल ओके देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड व्हेरिएबल सो कैन यू टेल मी द पॉसिबल केसेस फंक्शन ऑफ एक्स वाय असेल तर मग dz इंटीग्रेट करायचं ठीक आहे सो इफ इनर इंटिग्रल आर फंक्शन ऑफ x and y okay so let me consider this first if inner integral is function of x and y in that case you have to integrate that integral first with respect to what पहले आपको क्या करना होगा dz so we have to integrate that first with respect to z where z vary from what f1 of xy to f2 of xy okay now tell me the next case बोल नेक्स्ट केस बोल If limit are function of y and z then we will integrate it with respect to dx. What are the cases for the second for the middle integral क्या cases आ सकती है can I take this as the function of मतलब आप बोलो cases क्या है बोलो आप बोलो can I take this as the function of z क्योंकि आज आपने ऑलरेडी z से इंटीग्रेट किया है जिस वेरिएबल से आप इंटीग्रेट करते हो वही लिमिट्स इसके आ जाते हैं एंड ऑलरेडी यू इंटीग्रेट आपको पता है इन तीनों में से एक इंटीग्रल x का होगा एक y का होगा एक z का होगा ऐसा कभी नहीं होता कि दो इंटीग्रल x के आ रहे और एक इंटीग्रल y का आ रहा है ये तो क्लियर है ना इफ देयर आर थ्री इंटीग्रल वन मस्ट रिप्रेजेंट द लिमिट्स ऑफ x वन मस्ट रिप्रेजेंट द लिमिट्स ऑफ y वन मस्ट रिप्रेजेंट द लिमिट्स ऑफ z ये तो फिक्स है ठीक है एंड ऑलरेडी हियर यू हैव इंटीग्रेटेड दैट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z सो अभी आप z का यूज नहीं कर सकते हो सो अदर देन z देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स either you can take this as the limits of x or either you can take this as the limits of y again it depend on you तो randomly आप कुछ भी बोलो so let me take this as the y it depend on you it depend on you yeah it depend on the question there are only two possibilities you can take either function of x or either function of y you can't take this middle integral as the limits of z क्योंकि z आपने already use किया है now in that case you have to integrate बोलो नेक्स्ट किससे इंटीग्रेट करना होगा नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ y अदर देन y जो लिमिट से उससे कभी आप इंटीग्रेट नहीं करते हो ये x एंड y का था तो अदर देन x एंड y आपने देखा था ये y का फंक्शन है तो अदर देन y कौन सा फंक्शन है आपके पास ओनली x बिकॉज z आपने ऑलरेडी यूज किया सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल x सो इन दैट केस यू हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन योर x वैरी फ्रॉम g1y to g2y ठीक है and last case is and your last case is with respect to y जो भी रिमेनिंग है y ठीक है so let me write it properly so last case is y
वेयर वाई वैरी फ्रॉम सम ए टू बी। हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप ऑर्डर कैलकुलेट करते हो। ये बस मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, बट आपको समझ में आ रहा है देयर आर मेनी केसेस। यहाँ पे मैंने इनर इंटीग्रल एक्स एंड वाई का लिया था, आप यहाँ पे वाई जेड का भी ले सकते हो, एक्स जेड का भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनी वेरिएबल विच यू वांट। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर, ठीक है। सो एग्जांपल, यू हैव टू जस्ट टेल मी द ऑर्डर, ठीक है। First question, the integral from 2 to 3, then integral from x to x square, then integral from 0 to just 1 minute, z plus x। ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन, लेट मी टेक दिस एज सम x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर dx dy dz। बोलो, इन दिस केस you have to integrate first with respect to what? dy। Okay, so x square plus y square plus z square. Okay, as the your inner integral gives the limits of x and z, so you have to integrate first with respect to y. Okay, correct. And then your y vary from z minus x to z plus x. Then in next case, since it is the function of x, dz। हाँ, so other than x there are two variable. Other than x कौन से दो वेरिएबल है? सॉरी, अदर देन एक्स देर आर टू वेरिएबल, वन इज वाई वन इज जेड, बट ऑलरेडी आपने वाई से इंटीग्रेट किया है, तो आपके पास एक ही चॉइस है विच इज जेड। सो हियर जेड वैरी फ्रॉम एक्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लास्ट चॉइस इज देन एक्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, sir। ऐसे ही जा रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ योर इनर इंटीग्रल। जैसे डबल में था वैसे एज इट इज कंटिन्यू करना है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये इनर इंटीग्रल एक ही वेरिएबल का फंक्शन आता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल, एट द एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और एट द एंड इट्स फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो उस केस में ऑर्डर के लिए देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ भी सकते हैं, बट अगर ऐसे आ जाते हैं सो मे बी वहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑर्डर गिवन होगी कि सॉल्व बाय दिस ऑर्डर, बिकॉज इट क्रिएट अ कन्फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बस जेड का फंक्शन लेता हूँ, ओके, बाकी दोनों कांस्टेंट भी लेता हूँ, या अगर मैं जेड का लेता हूँ तो फिर मैं इसको वाई से भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक्स से भी कर सकता हूँ। तो वाई से करने के बाद भी एक आंसर आएगा, एक्स से करने के बाद आएगा, आई डोंट नो वेदर इट इज इक्वल और नॉट। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इन दैट एग्जाम्पल ऑर्डर इज गिवन। ओके, तो ऐसे केसेस में ऑर्डर वहाँ पे मेंशन ही रहेगी, ओके, बिकॉज दोज आंसर्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर वहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। जहाँ पे क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो रही है उसी केस में आपको ट्रिपल इंटीग्रल की ऑर्डर गिवन नहीं होगी। बट जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, कंफ्यूजन हो रहा है मतलब पार्ट समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट मी डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट एग्जांपल। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz, and if I take this as the limits of z to z square, and then 0 to y, and say -1 to -5. Now tell me, इस केस में आप बोलो, मैं बस ऑर्डर लिखने वाला हूँ, यू जस्ट टेल मी द पॉसिबल ऑर्डर। बोलो, अब ये इनर इंटीग्रल कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? z का है, करेक्ट है? Yes। हाँ, Yes, अगर sir। z का है तो आप इसको किससे इंटीग्रेट कर सकते हो? पहले dx के बराबर है। आप x से भी कर सकते हो, आप y से भी कर सकते हो, करेक्ट है? Yes। हाँ, व्हेन आई इंटीग्रेट, कोई भी एक फिक्स करो, व्हेन आई इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू dx, नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा? नेक्स्ट इसमें, अब ये y का फंक्शन है, अदर देन y देयर आर x एंड z, बट ऑलरेडी आपने x से किया है, तो क्या आएगा वहां पे?
dz, okay, and last order is dy. ये करेक्ट है, समझ में आ रहा है सबको? This is also the possible order of this given triple integral. नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली नो बोलो, okay? Other students, since the limits of inner integral are in z other than z, there are two choices. One is x, one is y. ओके अभी मैं दोनों केसेस लिखने वाला हूँ. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट केस. तो अगर मैं इसको पहले x से करता हूँ, नेक्स्ट केस में नाउ दिस लिमिट्स ऑफ दिस इनर इंटीग्रल आर इन y अदर देन y देयर आर टू वेरिएबल x एंड z, बट x आपने ऑलरेडी यूज किया है तो मुझे z ही लेना होगा. लास्ट तो सिंपली है. सेम लॉजिक फॉर सेकंड केस में व्हेन वी इंटीग्रेट दिस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y. जब आप सेकंड केस में आते हो, सेकंड केस में दिस लिमिट्स ऑफ दिस मिडल इंटीग्रल आर इन y, सो अदर देन y देयर आर टू वेरिएबल x एंड z. ऑलरेडी सॉरी, हाँ करेक्ट. हाँ तो यहाँ पे तो दोनों से जा रहा है. क्या क्या दोनों केस बदलना सर. तो इसमें दोनों केसेस आएंगे. ठीक है. सो आई थिंक देयर इज वन मोर केस दैट आई नीड टू ऐड. ओके सब केस ऑफ दिस यू कैन से. तो यहाँ पे मैं x से भी कर सकता हूँ और फिर उस केस में ये जाएगा dz. दिस इज ऑल्सो वन वे. नेक्स्ट इज व्हाट, dy मैं y से भी कर सकता हूँ. एंड बोलो सॉरी y से x से, x नहीं सॉरी z से ना. हाँ z से देन x से dx. बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ये तीनों का आंसर सेम नहीं आता. ये जो भी लिमिट्स है बाय स्पेसिफिक, आपको अभी क्लियर है ना, क्योंकि लिमिट्स आप रैंडम नहीं ले रहे हो. ये जब आप ये लिमिट्स लिखते हो ना z टू z स्क्वायर, उस केस में आप उस अकॉर्डिंग स्ट्रिप लेते हो. यहाँ पे भी स्ट्रिप ही लेना है, बट टू डायमेंशन में यू हैव अ 2D स्ट्रिप लाइक यूर स्केल जो आप यूज करते हो. 2 डायमेंशन की स्ट्रिप थी. व्हेन वी आर इन 3 डायमेंशन, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिप व्हाट वी हैव टू कंसीडर, प्लेन. अरे वॉल्यूम 2 डायमेंशन में जो स्ट्रिप होती है आपकी, वो एक स्केल होती है ना, स्केल आप जो यूज करते हो ग्राफिक्स में. हाँ दैट इज योर स्ट्रिप इन 2 डायमेंशन. वही स्ट्रिप लेते हो, उसको ही आप स्ट्रिप बोलते हो. बट व्हेन वी आर इन 3 डायमेंशन, तो ये इसका करस्पॉन्डेंस क्या होता है 3D में? अरे मुझे ये बोलो क्यूब और कैन से इट्स आप क्या बोलते हैं, रॉड. अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है. ऐसा 3 डायमेंशन का एक रॉड होगा. ठीक है, वो आपको वहाँ पे कंसिडर करना होगा, विच हैज ऑल 3 डायमेंशंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वन हाँ रेक्टेंगल रॉड क्या बोलते हो आप इसको? ओके आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, बट ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपको कंसिडर करना होगा. ये हम नहीं करने वाले, ऐसा कुछ हम नहीं जाने वाले, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच ट्रिवियल. वी आर इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में ऐसा रॉड ड्रॉ करके फिर उसके लिमिट्स कैलकुलेट करके इस अप्रोच से हम नहीं जाने वाले. वी हैव अनदर ट्रिक, मैं आपको वो बाद में देने वाला हूँ, बट ये चेंज होगा. ओके ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो. इसका दिस इज द 3 डायमेंशन करस्पॉन्डेंस ऑफ दिस 2D. सर्कल का 3 डायमेंशन करस्पॉन्डेंस क्या है? ये होता है 2D का ऑब्जेक्ट. इसको अगर आप 3D में लेके जाते हो, हाँ सिलेंडर. तो या क्योंकि क्या करना है, जब आप 3D में जाते हो ना, ओके उसको ही आपको हाइट देनी है. तो आप इसको इमेजिन करो ना, अगर आप ये सेम ऑब्जेक्ट को अगर हाइट देते हो, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस. करेक्ट है? यस सर. 3D में बस क्या होता है, फंक्शन आ जाता है ना, फंक्शन आ जाता है तो उससे हाइट मिलेगी आपको. तो उस हाइट से बस उसको ही स्ट्रेच करना है. तो इसको अगर आप हाइट देते हो ना, यू विल गेट अ सिलेंडर लाइक दिस. ऐसा करेक्ट है? ये मिलेगा. सो ये 2D का चलो सर. यस सर स्फियर आला पाहिजे ना सर. सर कारण आपण 3D मध्ये फिरवणार. स्फियर इज द क्लोज ऑब्जेक्ट. दिस सर्कल वेदर इट इज अ क्लोज ऑब्जेक्ट. हाँ नो सर. ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. ये यही उसका एक्सटेंशन है. एंड 3D में ये आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं है, बट ऐसा जनरली होता है. ठीक है, जब आप कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को जब आप उसको 3D में स्ट्रेच करते हो ना, आपको उसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है. ओके एक्सटेंड करा, उसी ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्रेच करना है विथ सम हाइट. ठीक है. स्फीयर कभी नहीं आएगा, बिकॉज इफ दैट ऑब्जेक्ट इज क्लोज इनिशियली, देन ओनली यू कैन एक्सटेंड इन 3D. ओके सर्कल ऑलरेडी क्लोज नहीं है.
स्पेस है ना इन बिटवीन, तो ये ऐसा ही एक्सटेंड होगा। इसको आप इमेजिन करो, इसको अगर आप ऊपर से स्ट्रेच करते हो नीचे से स्ट्रेच करते हो, विल गेट अ सिलेंडर लाइक दैट। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये जो कन्फ्यूजन का जो पार्ट था जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ओके, इस पर आपको कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, मैं लिख रहा हूँ नॉट IMP, ठीक है, बिकॉज इन तीनों से आपको अलग अलग आंसर मिल जाएगा एंड विच इज़ टोटली रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। इन दिस केस दे हैव टू मेंशन द प्रॉपर ऑर्डर, क्योंकि जब ये लिमिट्स उन्होंने कैलकुलेट किए थे एट दैट टाइम एक स्पेसिफिक ऑर्डर से ही वो कैलकुलेट किए थे। सो इन दैट केस दे हैव टू मेंशन इट्स ऑर्डर। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन का पार्ट आता है, जहाँ पे मोर देन वन आपको ऑर्डर मिलती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी देर से, जहाँ पे मोर देन वन आपको ऑर्डर मिलती है ना, उस केस में इन दैट क्वेश्चन इटसेल्फ ऑर्डर इज गिवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जिस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलती है, उस क्वेश्चन में ही आपको वो ऑर्डर गिवन होगी, क्योंकि हर एक ऑर्डर का आंसर अलग अलग होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस ऑर्डर से भी सॉल्व करो, इस ऑर्डर से भी सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ऐसा इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा करना है तो आपको वो प्रॉपर रॉड, जो रॉड आप वर्टिकल लेते हो ना, वही रॉड आपको हॉरिजॉन्टल लेके देन यू टू आइडेंटिफाई दोज लिमिट्स। सो ये लिमिट चेंज हो जाएंगे एंड यू विल गेट द इक्वल आंसर। ठीक है, सो इन तीनों केस का आंसर इक्वल कभी नहीं आने वाला। ओके, तो ऐसा नहीं कि मैं इस ऑर्डर से सॉल्व करता हूँ, आप इस ऑर्डर से सॉल्व करते हो, विल गेट द सेम आंसर। दिस इज टोटली डिफरेंट। दैट्स व्हाई इन दिस केसेस दैट ऑर्डर मस्ट बी गिवन इन द एग्जांपल इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट विच आई वांट टू क्लियर। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। नाउ लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑन दिस पार्ट। एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक दैट इज इनफ। 2 लेता हूँ, एक सारे कॉन्स्टेंट्स का उपयोग लेता हूँ। इंटीग्रल 0 to 1, नेक्स्ट इंटीग्रल y square to 1, नेक्स्ट इंटीग्रल 0 to just 1 minute। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अभी सॉल्व नहीं करने वाला, इट्स बिकम लेंदी, बट एक अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ। 0 to 1 minus x and 0 to x plus y. Let me take this now. And e raised to x dx dy dz. Okay, 0 to 1 minus x, 0 to x plus y, e raised to x dx dy dz. Okay, ये आपको सॉल्व करना है। So let me start. बोलो। So in solution, first tell me what is the order of this given integral. बोलो। Yes, what is the order of this? पहले अभी नेक्स्ट टाइम पे x आ रहा है, अदर दैन x एंड अदर दैन z, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, एंड देन dx। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, सो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम z runs from 0 to x plus y e raised to x dz, then we integrate this with respect to y, where y vary from 0 to 1 minus x, then we integrate this with respect to x and your x vary from 0 to 1। ठीक है, हाँ, एक कोई भी ले लेता हूँ मैं। नाउ इन दिस केस बाकी लिमिट्स आपके एज इट इज रहेंगे, 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट y from 0 to 1 minus x। yes, when you so integrate this with respect to z, बोलो integrate e raised to x with respect to z, क्या लिखना है बोलो? e raised to x z। when we integrate this with respect to z, what are the constants limits, or what are the constants here? x and y। x and y करते हो, x and y कांस्टेंट है, मतलब e raised to x ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वो वैसे भी बाहर आने वाला है आपका, है ना। देन यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस z, dz का इंटीग्रेशन z, एंड वैरी दिस z फ्रॉम 0 to
x plus y. Okay, and into this I guess dy as it is and your dx as it is. ठीक है, so that gives me integration from x equal to 0 to 1, integration from y from 0 to 1 minus x. ये आपको मिलेगा यहाँ पे e raised to x into x plus y dy. ठीक है, remaining things are 0 and into this dx as it is. Now next integrate this middle integral with respect to y. So your x vary from 0 to 1 है ना, your y vary from, इसको करना ही है, बोलो. When we integrate this with respect to y, यहाँ पे constant क्या है आपके पास, e raised to x constant है ना, वो बाहर आ जाएगा. And what is the integration of x plus y? x y plus y square by 2. Very good. X plus y का with respect to y is x y plus y square by 2. Very good. And then with respect to dx ना, sorry limits लिखना है, 0 to 1 minus x dx. Now just put the upper limit and lower limit. So your next answer is x vary from 0 to 1 e raised to x. If I put upper limit here, you will get x into 1 minus x plus 1 minus x whole square by 2, and when I put lower limit it becomes 0, so no need to put no need to write that part, and this is your final answer. ठीक है, इसमें अभी जो होगा सिंप्लीफिकेशन व्हाट दैट यू कैन डू, क्या हो सकता है इसमें सिंप्लीफिकेशन, बोलो क्या कर सकते हैं हम इसमें. e raised to x, also we can take 1 minus x outside, in bracket you will get x plus, बोलो 1 minus x by 2. ठीक है, या आप वैसे भी रख सकते हो, जो ऊपर है वैसे भी आप रख सकते हो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. 2x plus x plus y by 2. So that become x vary from 0 to 1 e raised to x 1 minus x. ये क्या हो जाएगा 2x है ना, 2x plus 1 minus x, क्या मिलेगा वो x plus 1 upon 2 ना. by 2. So Yes. I think this I can write it like this. Correct है ये? So this I can write it as 1 by 2 integration from 0 to 1. ये x plus 1 and x minus 1, या 1 minus x and 1 plus x, क्या होगा ये 1 minus x square. 1 minus x square. ये आप चाहो तो डायरेक्टली कैल्सियम में डालो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, इसके आगे आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं. एंड ओके, इट इज़ अप टू यू, आप इसको क्या ले रहे हो. सो आई गेस दिस आंसर इज 1 by 2. चेक करो बस एक बार. ठीक है भाई, मैं जंप करने वाला हूँ इसके आगे. ओके, ऐसे आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. अभी एमसीक्यूज में इतने लेंदी आपको नहीं आएंगे, बट आपको एटलीस्ट ऑर्डर क्या है, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे 1 लेता हूँ तो इसको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा. ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आ सकते हैं. ओके, सो दिस इज वन क्वेश्चन. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. इवैल्यूएट integration 0 to 1 0 to 1 0 to 1 then e raised to x plus y plus z dx dy dz. बोलो इसको कैसे सॉल्व करोगे. 3 times multiplication 3 times multiplication आपको प्रूफ होता है ना सर. आप ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेपरेट करून पण करू शकता ना. हाँ कर सकते हो, बट व्हाट इज द ऑर्डर. कशी पण चालेल. हाँ, अगर मैं सेम क्वेश्चन में इफ आई टेक दिस, ये आपको ऐसे नहीं आने वाला कंफ्यूजन पार्ट, बट स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको, हाँ इस केस में कैन यू टेल मी ऑर्डर, द एग्जैक्ट ऑर्डर. सी, एक इंटीग्रल की एक ही ऑर्डर होती है, तो कभी भी ये मत बोलो कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, दिस आर द पॉसिबिलिटीज. तो उस केस में उनको मेंशन करना होगा कि किस ऑर्डर से आपको जाना है ना. सो बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑर्डर. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर से सॉल्व करना होगा. सो कैन यू आइडेंटिफाई दैट एग्जैक्ट ऑर्डर इन दिस केस, मेरा ये क्वेश्चन है. इस केस में हाँ प्रॉब्लम समझ में आ रही है अदर स्टूडेंट को. इफ लिमिट्स आर डिफरेंट then I don't know 2 to 3 these are the limits of x or limits of y or limits of z. It is not given. If it is not given then I don't know कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो ऐसे केसेस में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे
फाइनल एग्जाम में कंपल्सरी मेंशन होगा, दिस यू हैव टू टेक एज द लिमिट्स ऑफ x, दिस यू हैव टू टेक एज द लिमिट्स ऑफ y, दिस यू हैव टू टेक एज द लिमिट ऑफ z। तब इसकी ऑर्डर होगी dx, dy, dz। ओके, तो इसलिए ये कंफ्यूजन का जो पार्ट है वो आपको एग्जाम में कभी नहीं आने वाला। इफ इट इज देयर देन इन दैट केस दे हैव टू मेंशन दिस इनर इंटीग्रल गिव्स यू लिमिट्स ऑफ आइदर x और y और z, तो वो उनको मेंशन करना होगा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सो फॉर एवरी गिवन ट्रिपल इंटीग्रल देयर इज ओनली वन फिक्स ऑर्डर, है ना। उस केस में आपको पता है कि उसके एक फिक्स ऑर्डर होती है, उसी ऑर्डर से आप सॉल्व कर सकते हो। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इफ आई टेक ऑल थ्री लिमिट्स आर इक्वल, इन दिस केस यू कैन सॉल्व बाय एनी ऑर्डर। दिस इज मतलब अगर तीनों के लिमिट्स इक्वल आते हैं ना तो फिर ऑर्डर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप dx डिवाइड dz से करो, डिवाइड dx dz से करो, dz dxy, कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आप करो, यू विल गेट सेम आंसर इन ऑल केसेस। में दो स्टेटमेंट मेरे समझ में आ रहे हैं। इफ लिमिट्स आर डिफरेंट then there is only one specific order of given triple integral. If limits are equal then you can solve by any order. करेक्ट है? ये सब कांस्टेंट लिमिट के लिए चल रहा है। इन केस ऑफ, लेट मी राइट, इन केस ऑफ कांस्टेंट्स लिमिट्स, फर्स्ट limits are different, okay, then there is only one fixed order of given triple integral, ठीक है, कांस्टेंट लिमिट्स के केस में। एंड सेकंड केस में आपको क्या मिले, इफ all limits are equal, ठीक है, then we can solve by any order। solve by any order। तो अगर इस केस में आप जाते हो तो वहां पे क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होगी, इस केस में जाते हो तो आपको रैंडम ऑर्डर से उसको सॉल्व करना है, जैसे ये एग्जांपल था। ओके, यू कैन ट्राई एनी ऑर्डर एंड उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को अभी कोई भी एक रैंडम ऑर्डर से हम जा सकते हैं। सो आई कैन इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट, फिर x, फिर y, इससे भी मैं कर सकता हूँ, और dx, dy, dz से भी कर सकता हूँ, एंड सो एक्सेट्रा। कोई भी एक ऑर्डर से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आंसर आपको वही मिलेगा, कैलकुलेशन भी वही होगा, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आने वाले। बट दिस इज नॉट दैट मच ट्रिवियल, बट ठीक है, ये कर लेते हैं एंड देन विल मे बी बोलो। सो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था, आई थिंक e रेज टू x प्लस वाई प्लस जेड। लेट मी फर्स्ट इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू z, वेयर z वैरी फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद करते हैं y, है ना, वेयर y वैरी फ्रॉम 0 to 1, एंड उसके बाद करते हैं x, वेयर x वैरी फ्रॉम 0 to 1। ओके, चलो बोलो जल्दी जल्दी। सो x वैरी फ्रॉम 0 to 1, y vary from 0 to 1, बोलो what is integration of this? हाँ, e raised to x plus y plus z का सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म बट विच इज 1, एंड यूर z vary from 0 to 1, ठीक है। देन dy एंड देन सॉरी ये कैसे आएगा, देन इट इज dy and dx, ठीक है। and now complete this। so x vary from 0 to 1, y vary from 0 to 1। if I put upper limit you will get x plus y plus 1। what is your lower limit, बोलो, x plus y only, z equal to 1 and z equal to 0, and then you have to integrate this with respect to y, ठीक है, and then with respect to x। अभी विद रिस्पेक्ट टू y बोलो, बोलो विद रिस्पेक्ट टू y बोलो, पहले का क्या आएगा, x plus y plus 1, है ना, एंड नेक्स्ट का सेम ही होगा, क्योंकि e raised to x का फंक्शन, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही आता है, बट हियर y वैरी फ्रॉम 0 to 1। नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
So x vary from 0 to 1. Upper limit is what? e raised to, yes, anyone? बोलो, y equal to 1 पुट करना है, क्या लिखना है? yes. फिर यहाँ पे ये हो गया अपर लिमिट माइनस, बोलो, e raised to x plus 1. हाँ माइनस e raised to x, ठीक है? क्या कैंसिल हो रहा है? सो दिस इज e raised to x plus 2, ये माइनस कैंसिल नहीं हो रहा है सारी, सो दिस बिकम x plus 1 and plus e raised to x, and you can complete this. इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन ट्रिवियल है, एंड आई थिंक दैट आंसर इज, अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, e minus 1 क्यूब। डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा, इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको कुछ तो मिल जाएगा वहाँ पे। ये भी ट्रिवियल है, सेम इंटीग्रेशन आएगा, जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, वट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसमें भी स्पेसिफिक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपल इंटीग्रल विद लिमिट्स। इतना ही आज के लेक्चर में हमने देखा है, ठीक है? सो आई थिंक हियर विल स्टॉप टुडे।